کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ آپ نے ویورز اور سبسکرائبر کی فرمائش پر پیش خدمت ہے 1947 کے مظالم کی کہانی، خود مظلوموں کی زبانی۔ امرتسر کی ایک ہولناک رات، خون آشام، قلب و جگر کو تڑپا دینے والے چشم دید واقعات۔ کیا آزادی کے چراغ خون سے جلتے ہیں؟ ہندوؤں نے میرے دونوں بھائیوں اور ابا جان اور امی جان کو میرے سامنے شہید کر دیا اور مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے۔ ان ہندوؤں سے جا کر کہہ دیں کہ ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی کو اپنی عزت جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ یہ واقعہ مجھے کامریڈ موہن سنگھ بجلی نے سنایا۔ کامریڈ بجلی آل انڈیا سوشلسٹ پارٹی کی امرتسر شاخ کا ممبر تھا۔ پارٹی کا دفتر حال بازار میں سندھ شکارپور ہوٹل کے سامنے مسجد خیر الدین کے پہلو میں تھا۔ نیچے گرامو فون ریکارڈوں کی دکان تھی، جہاں سے دن بھر کبھی کملا جوریا، کبھی اختری بائی، فیض آبادی، کبھی پیارو قوال اور کبھی سیگل کانان اور مینگج کے گیتوں کی آواز آیا کرتی۔ اسی دکان کی بغل سے تنگ سیڑھیاں اوپر پارٹی کے دفتر کو جاتی تھیں۔ سوشلسٹ پارٹی کے دفتر میں ہی امرتسر ٹانگا ڈرائیور یونین کا دفتر بھی تھا، جس کا سیکرٹری کامریڈ چمن اور جنرل سیکرٹری ظہیر کشمیری تھا۔ ناٹے قد اور گھٹے ہوئے بدن والا کامریڈ چمن کوچوانوں کے چندے کی شراب پی کر شام کو پارٹی کے دفتر میں آ کر خوب ہوتم مچاتا۔ کامریڈ اللہ رکھا ساجد جناح کیپ اور گھر دہلی شلوار قمیض اور بڑا مخلص معلوم ہوتا۔ وہ پنجابی کا شاعر بھی تھا، کبھی کبھی اردو میں بھی شعر کہتا۔ ایک روز میں اور احمد راہی دفتر کی بالکونی میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے، حال بازار کی رونق دیکھ رہے تھے کہ کامریڈ ساجد ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بازار میں ہندو سکھ لڑکیاں بڑی تعداد میں گزر رہی تھیں، غالباً اس روز کوئی تہوار تھا۔ ظہیر کشمیری نے پارٹی دفتر کے اوپر والے کمرے پر قبضہ جما رکھا تھا۔ چاروں طرف کتابوں کے ڈھیر پڑے تھے، دری پر ایک صندوقچی رکھی تھی، کونے والی میز پر سیاہ پتھر کا ایک چورس ٹکڑا پڑا تھا، جس پر ٹیگور کے نقوش ابھرے ہوئے تھے۔ کامریڈ ساجد، کامریڈ بجلی، کامریڈ شریف متین، کامریڈ چمن اور کامریڈ کنول، یہ لوگ سوشلسٹ پارٹی کے سرگرم رکن تھے۔ ظہیر کشمیری خانسامہ یونین اور ٹانگا ڈرائیور یونین کے لیے کام کرتا۔ میں اور احمد راہی کبھی کبھی اس دفتر میں جا کر گپ بازی میں وقت گزارا کرتے۔ مجلس احرار کا ان دنوں امرتسر میں بڑا زور تھا۔ مسجد خیر الدین اور انجمن پارک کی فضائیں سید عطا اللہ شاہ بخاری اور شیخ حسام الدین کی جوشیلی بڑکیلی تقریروں سے گونجا کرتی تھیں۔ اس جماعت میں بڑے مخلص کارکن بھی تھے، مگر حکومت الہیہ کے پروگرام کی تفصیلات کو یہ واضح صورت میں امرتسری مسلمانوں کے سامنے پیش نہ کر سکتے تھے۔ میرے خیال میں اس جماعت کا سارا جوش شعلہ فشاں تقریروں، ہنگامہ خیز جلسوں، پرہجوم جلوسوں اور فلک شگاف نعروں میں صرف ہوتا تھا۔ جو کچھ بھی تھا، امرتسر کی سیاسی فضاؤں کو پرجوش، گرم اور بیدار رکھنے میں مجلس احرار بھی بڑا کام کر رہی تھی۔ اس جوش کو بعد میں ڈاکٹر سیف الدین کچلو کی نیلی پوش تحریک نے بھی خوب گرمایا، اور جب مسلم لیگ پاکستان کا مشن لے کر سامنے آئی تو امرتسری مسلمانوں کو پہلی بار اندھیرے کے سمندر میں دور روشنی کا ایک مینار اٹھتا دکھائی دیا۔ پاکستان کے قیام کا پروگرام ایک بڑا واضح اور مثبت پروگرام تھا۔ اس پروگرام کی قیادت ایک پرعزم پیلوس اور مرد آہن کے ہاتھ میں تھی، جس نے برہمنی سامراج کے مکر و فریب کے پردے کو چاک کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ پنجاب کے مسلمانوں اور خاص طور پر امرتسر کے مسلمان سیاسی طور پر 1857 سے لے کر اس وقت تک سیاسی بے یقینی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے تھے۔ ہندوؤں کی تہذیب، کلچر اور مذہب الگ تھا، ان کے ساتھ مل کر وہ رہ نہیں سکتے تھے، ان سے الگ ہو کر رہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ امرتسر میں ہر محرم اور عید میلاد پر ہندو مسلم فساد ہو جاتا تھا۔ پٹرنگوں کا تعزیہ گرو بازار میں سے ہو کر گزرتا تھا، جو کہ ہندو سکھوں کا گھر تھا۔ غیر مسلم اس تعزیے پر پتھر پھینک کر بھاگ جاتے۔ ایک بار محرم پر کرمو ڈیوڑی کے ہندو حلوائی نے کھولتا ہوا گھی مسلمانوں پر پھینک دیا، جس کا بدلہ اسی وقت ہندو حلوائی کی دکان کو نظر آتش کر کے لیا گیا۔ امرتسر کا مسلمان بہادر، دلیر اور نڈر تھا۔ ہندو سکھ ہمیشہ اس سے دب کر رہتے تھے، پھر بھی غیر مسلم اپنی فرقہ وارانہ شرارتوں سے باز نہ آتے تھے اور ہر مذہبی تہوار پر فساد کھڑا کر دیتے۔
मैंने अपनी आंखों से दर्शनी डेवड़ी में ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर हिंदू लड़कों को पत्थर फेंकते और फिर भागते देखा है। मैं इन दिनों MAOI स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ता था। ईद मिलाद का जुलूस शहर में से होता हुआ सक्तरी बाग की तरफ जा रहा था। मैंने चांद तारे वाला सब्ज परचम उठा रखा था। इन दिनों जुलूसों में झंडे उठाने का बड़ा शौक था। परचम उठाए जब हम सीना ताने अपने मोहल्ले में से गुजरते तो हमें महसूस हुआ करता गोया हम दुश्मन पर फतह पाकर आ रहे हैं। जब ये जुलूस दर्शनी डेवड़ी में पहुंचा तो एक हिंदू के मकान से चंद ईंटें हमारे आगे पड़ी। मैंने मकान की तरफ देखा तो वहां छत पर से 2-4 हिंदू लड़के दूसरे मकान में कूद रहे थे। हमने इस मकान का बंद दरवाजा तोड़ दिया, मगर पुलिस ने मदाखलत करके मामला रफा दफा करा दिया। हिंदू हमेशा छुपकर मुसलमानों के जलसों और जुलूसों पर पत्थर फेंकते और दुम दबाकर भाग जाते। वो खुलकर भी कभी मैदान में सामने नहीं आते थे। जब अमृतसर के शेर मुसलमान मैदान में आते तो मैदान खाली होता। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गैर मुसलमों की ये इश्तियाल अंगेज हरकतें कब तक जारी रहेंगी और मुसलमानों की आने वाली नस्लें ब्राह्मणों की फितना परवर और मुनाफिकाना ज़हनियत के साथ अपना मुस्तकबिल कैसे संवारेंगी। चुनांचे उसी तहजीब और अदम इत्मीनान के आलम में जब पाकिस्तान की करारदाद सामने आई तो मुसलमानों को पहली बार अपनी मंजिल का सराग मिला और उन्होंने इस मंजिल दरख्शां तक पहुंचने के लिए जान और माल की कुर्बानियां देने का अज़म बिल जज़म कर लिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी तक हिंदू लीडरों के दाम में गिरफ्तार थे और कांग्रेस की ब्राह्मणी जमात को ही हिंदुस्तान की वाहिद जमात समझते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जब ब्राह्मणी साम्राज्य और मुस्लिम दुश्मनी के शोले उनके घरों तक पहुंच गए तो उन पर हिंदू का मुनाफिकाना और इस्लाम दुश्मन अंदाज़े फ़िक्र खुलकर सामने आ गया। मैं इन दिनों मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था, लेकिन मेरी खाना बंदोशियाँ मुझे उतनी उम्र में ये बम्बई से कलकत्ते, नागपुर से मदारस, तर्चनापुली, रामेश्वर और वहाँ से लंका और फिर वहीं से रंगून तक घुमा फिरा लाई थी। मैंने मदारस के मोपल मुसलमानों को इस्लामी शार पर इंतहाई पाबंदी से अमल करते देखा था। मैंने वजीगा टीम में मरहटे मुसलमानों को सुर्ख आंखें लिए सुल्तान टीपू के मज़ार पर नामालूम खिलाओं में घूरते देखा था। मैंने रंगों की जामिया मस्जिद में मुसलमानों को नमाज जुम्मा के बाद दीन इस्लाम की मरकज़ियत और आलम इस्लाम की तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगते सुना था। मैंने रंगों के जहर बादी बर्मी मुसलमानों के महल्लों में सुबह के वक्त कुरान करीम की तिलावत की पुरशिकवा आवाज़ें सुनी थीं और मैं कोलंबो की टीपू मस्जिद में हर नमाज पर मुसलमानों के इज्तिमाए अजीम को अपनी आंखों से देख चुका था। फिर मैंने अजीन और नागपुर के ब्राह्मणों को मुसलमानों के साथ छूट-छात करने और दामन बचाकर नफरत से गुजरते देखा था। मेरे सामने हिंदू कलकत्ते की ज़करिया स्ट्रीट वाली मस्जिद नाखुदा के आगे से बाजे बजाते और मुसलमानों को मुश्तइल करते गुजरा करते थे। इस उम्र में ही मुझे सियासी बसीरत न सही मगर इतना ज़रूर मालूम हो गया था कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों से नफरत करते हैं और उनके झूठे बर्तनों को हाथ लगाए बगैर कुत्तों के आगे फेंक देते हैं। अमृतसर के हिंदू महल्लों में जगह जगह पानी की सबीलें लगी होती। इन सबीलों पर हिंदू और सिख या तो शीशे या तांबे के गिलास में पानी पीते और किसी गरीब सबील पर औक से पानी पी लेते, लेकिन मुसलमान को हर हिंदू सबील पर बांस की नलकी में पानी डालकर जानवरों की तरह पीना पड़ता। गोया मुसलमान को हिंदू अछूतों से भी कमतर समझते थे। ये वो जिल्लत अंग्रेज रवैया था जिसे कोई भी गयूर कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुसलमान एक बहादुर और गयूर कौम है। उसने कई 100 बरस तक हिंदुओं पर हुकूमत की थी। वो भला इस जिल्लत को क्यों कर ज्यादा बर्दाश्त कर सकती थी। करारदाद पाकिस्तान ने मुसलमानों को उनकी इज्जत नफ्स, दीन, कल्चर और गैरत के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया था। चुनांचे अमृतसर के तकरीबन हर मुसलमान के दिल में पाकिस्तान की शमा रोशन हो गई और वो आंधियों और तूफानों के मुकाबले के लिए सीना सुपर हो गया। दूसरे मुसलमान घरों की तरह हमारे घर में भी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का चर्चा रहने लगा। हमें और तो कुछ इल्म नहीं था, हाँ इतना ज़रूर मालूम था कि पाकिस्तान बन गया तो मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क मिल जाएगा जिसमें वो आज़ादी और इज़्ज़त के साथ रहेंगे और एक मुसलमान के लिए आज़ादी और इज़्ज़त से बढ़कर और कोई शय इस दुनिया में नहीं है।
शहर में मुस्लिम लीग के जलसे मुनक्किद होने और जुलूस निकलने शुरू हो गए। एक बार अंजुमन पार्क में मुस्लिम लीग का जलसा हुआ। मैं अपने छोटे भाई मकसूद के साथ जलसा सुनने गया। मुझे आज अच्छी तरह याद है कि जब राजा गजनफर अली खान तकरीर के बाद तालियों के शोर में स्टेज से नीचे उतर रहे थे तो एक लीगी कारकुन ने नारा लगाया, राजा गजनफर अली खान जिंदाबाद। और मैंने अपने भाई को बताया कि ये लफ्ज़ असल में गजनफर है। वक्त गुजरता गया, जंग शुरू हो गई, फिर ख़त्म हो गई और शहर में सियासी हंगामे ज़्यादा तेज़ हो गए। गोलबाग, अंजुमन पार्क, मस्जिद खैरुद्दीन, सक्तरी बाग और मस्जिद जान मोहम्मद में हर जुम्मा को जलसे होने लगे। शायद उन्हीं दिनों लंदन से कैंट मिशन आया, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान की मंजिल करीब आ रही थी और अमृतसरी मुसलमानों में जोश व खरोश बढ़ रहा था। औरतों के जुलूस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते निकलना शुरू हो गए। पुलिस उन पर आंसू गैस फेंकने लगी। अमृतसर की कोई दुकान, कोई होटल, कोई बैठक ऐसी न थी जहां पाकिस्तान और कैद आज़म के बारे में बात न हुई हो। मार्केट हुकम सिंह में सूफी गुलाम मोहम्मद तुर्क का तुर्क होटल और कामरेड होटल अमृतसरी शायर, अदीबों और दानश्वरों के टी हाउस और काफ़ी हाउस थे। यहाँ सुबह शाम गर्मा गर्म बहसें होती। सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज पहुँच चुकी थी। एक रोज़ मुझे कामरेड मोहन बिजली ने कहा, यार तुम लोग तो मालूम होता है पाकिस्तान बना लोगे, लेकिन हमारा क्या बनेगा? हम लोग हिंदुओं के साथ कैसे गुजारेंगे? बहरहाल इस्लाम के मुकाबले में तुम लोग हिंदू मज़हब के बहुत करीब हो, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मैंने कहा। इस पर कामरेड मोहन सिंह बिजली गहरी सोच में डूब गया और उसके बालों भरे उधेड़ उम्र के बुच्चे से चेहरे पर लगी ऐनक के शीशे मांद पड़ गए थे। कामरेड बिजली बड़ा मुखलिस सिख था। उसे ना इस्लाम से दिलचस्पी थी, ना हिंदू अज़म से और ना सिख मत से, मगर कड़ाकर पान जरूर पहनता था और केस भी उसने रखे हुए थे। यह हकीकत उस जमाने में ही मेरे तजर्बे में आ चुकी थी कि हिंदू और सिख कम्युनिस्ट होकर दूरिया होकर भी अपने मजहबी शायर पर किसी न किसी तौर पर कायम रहते थे। हमारे महल्ले के राम गुड़िया हाउस हाई स्कूल में हमारा हिसाब का मास्टर ऊना सिख था और दैरिया था, यानी उसने दाढ़ी, मूंछ और बाल साफ कर रखे थे। फिर भी वो सुबह के वक्त शबार कीर्तन बड़े अदब से हाथ बांधकर सुनता और हर बात में गुरु नानक और गुरुवारजन के किसी कौल का हवाला जरूर देता और अंदर से वो दीन इस्लाम का कट्टर दुश्मन भी था। लेकिन कामरेड मोहन सिंह बिजली बड़ा जाम मरंज सिंह था। जब अमृतसर में 1946 के बाद हिंदू मुस्लिम फसादात की आग ज्यादा तेजी से भड़क उठी, फिर भी कामरेड बिजली कर्फ्यू खुलने के बाद पार्टी के दफ्तर का एक चक्कर जरूर लगाता। पार्टी का दफ्तर मुस्लिम अक्सरियत के महलों में गिरा हुआ था। हमने उसे कई बार समझाया कि वो यूं खुले बंदों ना आया करे, मगर उसने हर बार मुस्कुराकर यही कहा, कामरेड मुझे मारकर कोई क्या करेगा। मगर लाहौर असेंबली हाल की सीढ़ियों पर मास्टर तारा सिंह ने नंगी तलवार लहराकर ऐलान कर दिया था कि सिख पाकिस्तान कभी नहीं बनने देंगे और मुसलमान हर कीमत पर पाकिस्तान बनाने का फैसला कर चुके थे और अमृतसर के गली कूचे पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से थरा रहे थे। चुनांचे एक रोज कामरेड मोहन सिंह बिजली पर हमला हो गया। कामरेड बिजली ने बड़ी मुश्किल से जान बचाकर पार्टी के दफ्तर में आकर पनाह ली। उसके बाद उसने हाल बाजार में दफ्तर की तरफ आना बंद कर दिया। मोहन सिंह बिजली महल्ला बम्बे वाला में तारों वाले बाग के सामने एक गली में रहता था। ये महल्ला हिंदू अक्सरियत का महल्ला था। उससे आगे जाकर चौक लोहगढ़ आता था, जहां दरवाजा लोहगढ़ के आसपास 2-4 महल्ले मुसलमानों के थे। जो वाक़या मुझे कामरेड मोहन सिंह बिजली ने सुनाया उसका ताल्लुक अगस्त 1947 के अवाखिर से है। ये बड़े आग और खून में लथड़े हुए दिन थे। कटड़ा झील सिंह चौक गोली हट्टी से लेकर फम वाले बाजार तक और वहां से लेकर मस्जिद कासदां तक सारे का सारा जलकर राख बन चुका था। उदड़ बाजार, गड़िया, कटड़ा, करम सिंह बाजार, सराय रामदास बाजार, पंगिया महल्ला, एलवाहियाँ और हिंदू अक्सरियत में गिरे हुए उसी किस्म के दूसरे महल्लों में मुसलमानों के घरों को नजरे आतिश किया जा रहा था। जिला गुरदासपुर और अमृतसर हिंदुस्तान में शामिल कर दिए गए थे। हिंदुओं ने मकानों पर तिरंगे लहरा दिए थे। वो फौज के साथ मिलकर मुसलमानों के खाली घरों को लूटकर आग लगा रहे थे।
हिंदू महल्लों से मुसलमान महल्लों पर मुसलसल फायरिंग हो रही थी। अमृतसर के गली कूचों, बाजारों, पार्कों, बागों और नालों में पड़ी हुई लाशों को गिद्ध और कुत्ते नोच रहे थे। शहर के वस्त में मुसलमानों के महल्ले वीरान हो चुके थे। मुसलमान अपना सब कुछ लुटवाकर महाजर कैंपों में दम बखुद बैठे शहर की चार दीवारी से उठते स्याह धुएं और सुर्ख शोलों को तक रहे थे। शरीफपुरा की मुस्लिम आबादी को महाजर कैंप करार दिया जा चुका था। उसके बाहर हमारी मशहूर बलोच रेजिमेंट मशीन गनें लिए बैठी थी। उसे जीटी रोड अबूर करके शहर में दाखिल होने की इजाजत ना थी। शहर में गोरखा, डोगरा और सिख रेजिमेंटों का राज था। सिवाय हमारे महल्ले कटरा महासिंह के अमृतसर की सारी जख्म खुर्दा मुस्लिम आबादी कैंपों में कूच कर गई थी। कटरा में महासिंह के मुसलमान सिमट कर हमारी गली कूचा डबगरा में आ गए थे और हम इन लड़कों का इंतजार कर रहे थे जो हमें इस गली से उठाकर शरीफपुरे के कैंप में पहुंचाने वाले थे। कर्फ्यू के खुलने और लगने का सवाल ही पैदा न होता था। सिवाय हमारे महल्ले के सारा अमृतसर हिंदू फौज की तहवील में था। इतने बड़े शहर में रहने वाली मुस्लिम अक्सरियत के मकानों को लूट कर आग लगा कर हिंदू से थक चुके थे। हमारी गली के मुंह पर लोहे का मजबूत दरवाजा चढ़ा दिया गया था। पक्की गली, केरी बाग, महल्ला बकरावाना, चौड़ा खूह, पीला अस्पताल और कोचा रंगरेजा के सारे मुसलमान घराने हमारी गली में पनाह ले चुके थे। ये लोग नंगे सर नंगे पांव अपने मकानों से भागे थे। हिंदू फौज ने दस्ती बमों और मशीन गनों से उनके घरों पर हमला कर दिया था। उनमें से किसी का सारा खानदान सामने कत्ल कर दिया गया था तो किसी के जवान बच्चे के सीने में गोली मार दी गई थी। कोई बच्चा अपनी मां को पुकार रहा था तो कोई अपने शहीद हो चुके बाप को रो रो कर आवाजें दे रहा था। पाकिस्तान टाइम्स के मशहूर आर्टिस्ट और पाकिस्तान के नामवर बॉक्सर महमूद भट्ट का बड़ा भाई हामिद भट्ट मेरा क्लास फेलो था। ऊंचा लंबा जवान और हॉकी का बेहतरीन खिलाड़ी। उसकी मंगनी भी हो चुकी थी। जब हिंदू फौजियों ने उनके महल्ले पर हमला किया तो उसने एक पल के लिए खिड़की की चक उठाकर बाहर देखा। 303 की एक गोली उसकी गर्दन पर आकर लगी और वहीं शहीद हो गया। इस हंगामा क़यामत में गम नसीब घर वाले हामिद की लाश भी अपने साथ न ला सके। हामिद भट्ट अगर जिंदा रहता तो आज हमारी कौमी हॉकी टीम के अहम सतूनों में से होता। पीर अहमद शाह कश्मीरी कड़ियल जवान था। सुर्खो सफेद रंगत, चेहरे पर शरई दाढ़ी मूंछ, 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार, नेक सीरत और खूबसूरत। हमारी गली से ये पता करने निकला कि कोचे रंगरेजा के सारे मुसलमान आ गए हैं या नहीं। दरबारी पंसारी की दुकान के सामने चौक में हिंदू थानेदार मोहता ने उसे गोली मारकर शहीद कर दिया। उसकी लाश भी वहीं पड़ी रही। ये आंखें किस किस मुसलमान की शहादत पर अशकबार हों, ये सीना किस किस के मातम में खून चुका हो। हजारों माओं के लाल मशरकी पंजाब के शहरों में बेगोरो कफन रह गए। जिन भाइयों को उनकी बहनों ने सेरे बांधने थे उन्हें कफन भी नसीब ना हो सके। बेशक हमने पाकिस्तान अपने प्यारों का खून देकर हासिल किया है और अपनी जानें देकर भी उसकी हिफाजत करेंगे। अमृतसर आग और खून में नहा रहा था। फैरों की आवाजें गूंज रही थीं। फिजा में जली हुई लाशों और जले हुए मकानों की बू थी। वहरान सड़कों पर रातों को कुत्ते रोते रहते। हर तरफ खून और दहशत का दौरा था कि कामरेड मोहन सिंह बिजली मुझसे मिलने मेरे महल्ले में आया। मैं गली के कोने वाले मकान में खिड़की के साथ लगा पहरा दे रहा था। मैंने आनी जंगले में से नीचे झांक कर देखा कि कामरेड बिजली एक पुलिस जीप से नीचे उतरा और गली के आनी दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता खटखटाने लगा। दोपहर का वक्त था। मटियाली फीकी धुआं आलू निकली हुई थी। मैंने बिजली को देखकर ऊपर से आवाज दी, कामरेड बिजली, किस लिए आए हो? मुझे पहला ख्याल आया कि शायद वो हिंदू सिख पुलिस को साथ लेकर हमारे महल्ले पर हमला कराने आया है। मैंने सोचा अगर ऐसी बात हुई तो मैं ऊपर ही से बंदूक का फायर करके उसे ढेर कर दूंगा। मेरी आवाज पर कामरेड बिजली ने चेहरा उठाया और हाथ से ऐनक दुरुस्त की और बोला, कामरेड नीचे आओ, मुझे तुम्हें एक अमानत देनी है। मैंने हैरानी से पूछा, किसकी अमानत कामरेड बिजली? तुम नीचे आओ, बिजली बोला। मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। मुझे तुम्हारे इरादे ठीक मालूम नहीं होते। मैंने कहा, तुम फौज को लेकर हमारे मोहल्ला में क्यों आए हो?
इतना सुनकर कॉमरेड बिजली ने पुलिस से कहा कि वो जीप लेकर कोतवाली चले जाएं, वो अपने आप वहां पहुंच जाएगा। जीप वहां से चली गई। अब बिजली मोहल्ले में अकेला रह गया। सामने दुकानें टूटी पड़ी थीं और उनका सामान बाहर बिखरा हुआ था। जरा दूर चौक में एक बैल की फूली हुई लाश मुझे साफ दिखाई दे रही थी। बिजली ऊपर मुंह करके कहने लगा, कॉमरेड, मैं अब बिल्कुल तन्हा और अकेला हूँ। अब तो नीचे आ जाओ या मुझे अपने पास ऊपर बुला लो। वाह गुरु की कसम, मुझे एक जरूरी अमानत तुम्हें देनी है। अब मैं सोच में पड़ गया। मैं उस मकान में अकेला ही बंदूक लिए पहरा दे रहा था। पहरा क्या था, बस उतनी ही ड्यूटी पर था कि अगर हिंदू फौजी हमला करने आता देखूं तो फौरन इत्लाह कर दूं ताकि गली के मुसलमान वहां से भागकर शरीफपुरे वाले कैंप में पहुंच जाएं। इस मकान का एक दरवाजा बाजार में भी खुलता था और बिजली बाजार में खड़ा था। खुदा जाने क्यों मुझे कॉमरेड बिजली की बात पर एतबार आ गया। फिर भी मैंने मोहल्ले के मुसलमानों की जिंदगियों को खतरे में डालना गवारा ना किया। मैंने चौबारे के ऊपर वाले दरवाजे को बंद करके ताला लगा दिया और सीढ़ियां उतरकर बाजार वाले दरवाजे पर आकर रुक गया। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ दरवाजे की कुंडी खोल दी। बंदूक मेरे हाथ में थी। उसका रुख अगरचे बराह रास्त बिजली की तरफ नहीं था, लेकिन वो मेरे निशाने की जिद से बाहर भी नहीं था। कौन सी अमानत है कॉमरेड बिजली? मोहन सिंह का चेहरा उतरा हुआ था और दाढ़ी के बालों में हल्की हल्की मट्टी पड़ी थी। वो बड़े इत्मीनान से चलता हुआ मेरे पास आया, जैसे उसे बंदूक का जरा बराबर भी खौफ न हो। मेरे पास आकर बोला, कॉमरेड, यहाँ सीढ़ियों में बैठकर ही मुझसे दो चार बातें सुन लो और फिर अपनी अमानत ले लो। वाह गुरु की कृपा है कि तुम मिल गए, वरना ये बोझ जाने कितनी देर मुझ पर रहता। हम दोनों सीढ़ियों में बैठ गए। उसके दोनों हाथों में कोई चीज रुमाल में लिपटी हुई थी, जिससे उसने अपनी सदरी के साथ लगा रखा था। रंग उसका भी उड़ा हुआ था। मैंने सीढ़ियों का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। सलाखदार रोशनदान में से मटियाली नाद जरा धूप की हल्की हल्की रोशनी और निहाल सिंह की जली हुई दुकान में से गुंदे बैरोजा की बू अंदर आ रही थी। मोहन सिंह बिजली ने टूटे फूटे लफ्जों में जल्दी जल्दी जो दर्दनाक वाकया मुझे सुनाया, उसे मैं आज आपको अपनी ज़बानी सुनाता हूँ। जिस रोज कॉमरेड मोहन सिंह बिजली पुलिस जीप में बैठकर मुझसे मिलने आया, ये उससे एक रोज पहले का जिक्र है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मोहन सिंह बम्बे वाला खूह में रहता था, जो कि हिंदू अक्सरियत का मोहल्ला था, और 15 अगस्त के बाद तो इन इलाकों में किसी मुसलमान के रहने का सवाल ही पैदा ना होता था। इन इलाकों से मुसलमानों की सारी आबादी दाइमगंज और रेगू ब्रिज की जानिब से निकलकर महाजर कैंपों या रिफ्यूजी ट्रेनों में बैठकर पाकिस्तान की तरफ कूच कर चुकी थी। इन मुसलमानों के छोड़े हुए वैरान महल्लों में हिंदू सिख लूटमार में मसरूफ थे। वो मकानों को लूट लूट कर आग लगा रहे थे। अमृतसर का मशहूर पंजाबी शायर और अदबी महफिलों की जान चाचा ईसा उसी इलाके में शहीद हुआ। वो हिंदुओं की बनाई अमन कमेटी के अरकान के साथ अमन की बातचीत करने गया कि उसे गोली मार दी गई। हमने उसकी लाश हासिल करने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। एक भंगी ने हमें तुर्क होटल में आकर बताया कि उसने अपनी आंखों से चाचा ईसा को गोली खाकर गिरते देखा है। अब इन वैरान दहशतज़दा गली कूचों में हिंदू सिख गुंडे फौज और पुलिस के साथ मिलकर दंदनाते फिरते थे। कहीं जले बुझे मकान सुलग रहे थे और कहीं ताज़ा लगी आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। मस्जिदों के मिंबर तोड़कर हिंदुओं ने वहां मूर्तियां लाकर रख दी थीं और दरवाजों पर खरिया मट्टी से ओम लिख दिया था। मोहन सिंह बिजली के बयान के मुताबिक वो शाम के वक्त कर्फ्यू लगने से कुछ देर पहले गोलबाग की तरफ से हाथी गेट की जानिब आ रहा था कि सीता मंदिर के पास उसे उस इलाके की नाम नेहाद अमन कमेटी का चेयरमैन बलराम मिल गया। बलराम कभी कभार पार्टी के दफ्तर में भी आया करता था। हमेशा झुक कर मिलता, बड़ा इंकसार दिखाता। इस रोज बलराम ने शराब पी रखी थी और वो मोहन सिंह बिजली को जबरदस्ती अपने साथ सतेला मंदिर के पिछवाड़े तालाब के साथ साथ बनी हुई कोठरियों में से एक कोठरी में ले गया। यहाँ बलराम के 6-7 हिंदू दोस्त शराब पी रहे थे और शोर मचा रहे थे। मोहन सिंह इन सब को जानता था। उसने बहुत कहा कि उसे घर जाना है, कर्फ्यू का वक्त हो रहा है, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। बलराम ने शराब का गिलास उठाकर कहा, बिजली, कौन सा कर्फ्यू?
कैसा कर्फ्यू, अमृतसर में अब हमारा राज है, आज हम तुम्हें सूरत की सैर करवाएंगे। और कहका लगाकर वो पूरा गिलास चढ़ा गया। अब मोहन सिंह बिजली को इल्म हुआ कि इन हिंदुओं ने शहर के अंदर से किसी मुसलमान लड़की को अगवा करके साथ वाली कोठरी में बंद कर रखा है और शराब खत्म करने के बाद उसे अपनी बर्बरियत और वहशत का निशाना बनाने वाले हैं। मोहन सिंह बिजली का कहना है कि वो सर से पांव तक लरस गया। खुदा जाने वो किस शरीफ बाप की बेटी थी और ये लोग उसे उठा लाए थे। मोहन सिंह ने दिल में फैसला कर लिया कि वो इस लड़की को इन दरिंदों से जरूर बचाएगा, मगर बलराम और उसके गुंडे दोस्तों की आंखें शराब पीकर खूनी हो रही थीं। ये भूखे भेड़िए के जबड़ों से उसका तरने वाला जबड़ने वाली बात थी। फिर भी मोहन सिंह बिजली कहता है कि मैंने उस बेकस व मजबूर मुसलमान बेटी की मदद करने का फैसला कर दिया और इस मकसद के हसूल के लिए खुद भी बलराम के साथियों की हाथों में शरीक हो गया। एक हिंदू गुंडा थूक कर उसे पांव से मसल कर बोला, मैं मुसलमानों को यूं ही मसल दूंगा, हा हा हा। बलराम, चलो उस मुसल्ली मुसलमान औरत के पास चलो, साली को अब होश आ गया होगा। भ्राता जी मेरी मानो, दूसरा बोला, उसने बेहोशी का बहाना बनाया है। बलराम अपने गिलास में शराब उंडेलते हुए हजकोले खा रहा था। बहुत चुप रह राम मूर्ति, इन मुसलमानों की औरतों को हम उल्टा लटका देंगे, क्या समझता है? बलजी, वो साली जय हिंद नहीं कह रही थी। मोहन सिंह ने पूछा, क्या कहती थी वो? बलराम मेज पर मुक्का मारते हुए चीखा, कहती थी पाकिस्तान जिंदाबाद, हत हत मजा चखा दूंगा। कॉमरेड मोहन सिंह कहता है कि मैंने मौके गनीमत जानकर बलराम से कहा, यार रबल, मैं जाकर उस मुसलमान औरत से बात करता हूँ, देखता हूँ किस तरह जय हिंद नहीं कहती, और फिक्र न करो, मैं उसे राजी भी कर लूंगा। मोहन सिंह ने आंख मारी, जिस पर बलराम कहका लगाकर हंस पड़ा। सारे हिंदू गुंडों ने मोहन सिंह की बात को पसंद किया। राम मूर्ति बोला, बलजी मोहन को भेज दो, बूढ़ा आदमी है, उसकी बात वो मुस्लिम मान जाएगी। चुनांचे मोहन सिंह बिजली साथ वाली कोठरी का ताला खोलकर अंदर आ गया। अंदर ताक में मिट्टी का दिया जल रहा था। अंदर गोबर की बू फैली हुई थी। कोने में टूटी हुई खाट पर एक लड़की पड़ी थी। दिए की धीमी रोशनी में मोहन सिंह ने देखा कि उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। बाल यूं खुले हुए थे जैसे किसी ने जबरदस्ती नोचे हों। वो बमुश्किल 18-17 वर्ष की जरा सी दुबली पतली लड़की थी। मोहन सिंह इस मुसलमान लड़की के करीब गया तो उसने तड़प कर गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा। मुसलमान लड़की की आंखों में खूंखार चीते की चमक थी। उसका सांस फूला हुआ था। उसने गर्ज कर कहा, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। मोहन सिंह बिजली कहता है कि मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि तुम्हें इन दरिंदों से बचाना चाहता हूं। लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। वो लोग शराब पी रहे हैं, उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से भगा दिया तो वो मेरे साथ तुम्हारी भी तिक्का बोटी कर देंगे, और फिर अगर तू यहाँ से भाग कर निकली भी तो किसी दूसरे हिंदू गुंडे या हिंदू सिपाही के हाथ आ जाएगी। मुसलमान लड़की ने जब मोहन सिंह के मुंह से बेटी का लफ्ज सुना तो उसे जरा हौसला हुआ। एक पल के लिए उसने मोहन सिंह को गौर से देखा और फिर अचानक गले में से एक मोटा सा ताबीज निकालकर उसे देती हुई बोली, मेरी ये अमानत अपने पास रख लें और किसी भी मुसलमान को दे दें। मेरा नाम रजिया बानो है। मैं MA ओक गर्ल्स हाई स्कूल में 10वीं जमात में पढ़ती थी। हिंदुओं ने मेरे दोनों भाइयों और अब्बा जान और अम्मी जान को मेरे सामने शहीद कर दिया और मुझे उठाकर यहाँ ले आए। इन हिंदुओं से जाकर कह दें कि एक मुसलमान घराने की लड़की को अपनी इज्जत जान से भी ज्यादा अजीज होती है। बकौल मोहन सिंह बिजली उस मुसलमान लड़की ने अचानक मोहन सिंह की तरफ हाथ बढ़ाया और मूसा ताबीज उसे देकर चश्मे ज़दन में मोहन सिंह की करपान निजाम से खींची और देखते देखते उसे अपने दिल में उतार लिया। खून का फुवारा छूटा और वो मुसलमान लड़की एक हल्की सी सिसकी भरकर चारपाई पर गिर पड़ी। मोहन सिंह एक पल के लिए तो पत्थर सा होकर रह गया। लड़की के सीने से खून जारी था और वो तड़प रही थी। फिर उसने शोर मचा दिया,
साथ वाली कोठरी से सारे गुंडे लड़खड़ाते गिरते पड़ते अंदर आए। उस वक्त तक वो मुसलमान लड़की ठंडी हो चुकी थी। मोहन सिंह ने कहा, उसने मेरी करपान से खुदकशी कर ली। मैं उसे समझा रहा था कि उसने मेरी करपान खींचकर दिल में गोंद ली। हिंदू गुंडों ने वैशी होकर पड़के मारी और बलराम ने कहा, मर गई है तो मरने दो, हम कोई दूसरी लड़की उठा लाएंगे। राम मूर्ति, चलो चलो यारो, कोई दूसरी औरत उठा लाते हैं, मुस्लिम नहीं तो हिंदू औरत ही सही। हा हा हा। और वो सारे शराबी शोर मचाते बड़के मारते कोठरी से बाहर निकल गए। मोहन सिंह इस मुसलमान लड़की की लाश के पास अकेला रह गया। बकौल मोहन सिंह, उस लड़की की लाश के चेहरे पर एक अजीब सुकून और नूर था। दिए की धीमी रोशनी में खून आलूद कपड़ों में उसका सफेद चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे गुलाब के फूलों के पास सर झुकाए बैठा रहा। कामरेड, एक मुसलमान लड़की इतनी गैरतमंद भी हो सकती है, ये मुझे अब मालूम हुआ था। सच कहता हूँ, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिया हुआ तावीज मेरे हाथों में था। मैं कितनी ही देर सर झुकाए बैठा रहा। रात गहरी हो गई थी। शहर की जानिब से कभी कभी गोली चलने की आवाज आ जाती थी। फिर मैंने उस बहादुर मुसलमान लड़की की लाश को अपने हाथों पर उठाया और बाहर ले आया। सतीला मंदिर वाले तालाब के अकब में कच्चा मैदान है जो जरा दूर फतेह शाह बुखारी और हजरत शंकर शाह के मज़ार तक चला गया है। यहाँ कहीं कहीं कीकरों के झुंड हैं। मोहन सिंह बिजली ने उन्हीं कीकरों के एक झुंड में जमीन में गड्ढा खोदा और रजिया बानो की लाश को दफन कर दिया। मोहन सिंह बिजली कहने लगा, कामरेड, मुझे मुसलमानों की तरह फातिहा पढ़ना नहीं आता था, लेकिन मैंने हाथ उठाकर अपने रब से कहा था कि ऐ सब के पालनहार, इस गैरतमंद मुसलमान बच्ची को शांति दे। मैं सीढ़ियों में दम बखुद बैठा था। मोहन सिंह बिजली ने रजिया बानो की अमानत वो तावीज़ मेरे हवाले कर दिया और खुश्क सी आवाज़ में बोला, कामरेड, ये बच्ची जहाँ दफन है वहाँ मैं उसकी कब्र नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे मालूम है हिंदू उसे ढा देंगे। मैं वहाँ मुसलमानों के रवाज के मुताबिक जुमरात को दिया भी न जला सकूँगा, उस पर फूल भी ना डाल सकूंगा। लेकिन कामरेड, यकीन करो, मैं जब तक जिंदा रहा हर जुमरात को वहां आकर अपने आंसुओं के फूल ओपन करता रहूंगा। अच्छा, अब मैं जाता हूं। मैंने उस बच्ची की अमानत तुझे दे दी है। अब मेरे दिल से बोझ उतर गया है। उसने कहा था कि किसी मुसलमान को ये तावीज़ दे देना। शहर में कोई मुसलमान नहीं रहा था। मैंने सुना कि तुम्हारे मोहल्ले में मुसलमान अभी हैं, चुनांचे मैं तुम्हारे पास आ गया। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैं जाता हूँ, कोतवाली में सिपाही मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसके साथ ही कामरेड बिजली ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर दबाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैं हैरत ज़दा सा होकर रजिया बानो शहीद का तावीज़ हाथों में लिए सीढ़ियों में बैठा रहा। कामरेड बिजली की बातें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थीं। अचानक बाजार में फैर की आवाज आई। मैं चौंका, जल्दी से दरवाजे को अंदर से ताला लगाया और चौबारे में आ गया। जंगले में से नीचे झांक कर देखा तो एक फौजी ट्रक चौक में खड़ा था और सिख हिंदू फौजी छलांगे लगाकर नीचे कूद रहे थे। मैं चश्मे ज़दन में सीढ़ियां उतरकर गली में आ गया और मोहल्ले वालों को हिंदू फौजियों की आमद की खबर सुनाई। इतने में एक जोरदार धमाका हुआ और गली का आहनी दरवाजा एक तरफ से झुक गया। उसके साथ ही गली में भगदड़ मच गई और लोगों ने गली की दूसरी जानिब लाल हवेली की तरफ भागना शुरू कर दिया। पीछे एक और धमाका हुआ। अब आहनी गेट एक तरफ से उड़ चुका था और हिंदू सिख गुंडे तलवारें और बलमें लिए उछलते कूदते शोर मचाते गली में आ गए थे। लेकिन उस वक्त गली में सिवाय इधर उधर बिखरे हुए घरेलू सामान के और कुछ न था। गली के सारे मुसलमान लाल हवेली और गुजरों के डेरों में से गुजरकर पाथी ग्राउंड के साथ वाली दीवार से होते शरीफपुरे वाले महाजर कैंप के करीब पहुंच चुके थे और कैंप में मुतय्यन बलोच रेजिमेंट के जवान उनके अगब में कवर फायरिंग कर रहे थे। शरीफपुरे पहुंचकर मैं एक थड़े पर बैठ गया और जब मैंने रजिया बानो शहीद के तावीज़ को निकाल कर देखा, ये एक छोटा सा बटुआ नुमा तावीज़ था।
میں نے اس کا بٹن کھولا تو اندر بادامی رنگ کا خستہ سا کاغذ نکلا جس پر قلم اور سیاہ روشنائی سے پوری سورت فاتح لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس مقدس امانت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا لیا اور میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میری آنکھوں میں فتح شاہ بخاری کے میدان والے کیکروں کا وہ جھنڈ بھر گیا جہاں اسلام کی ایک غیور بیٹی دفن تھی اور جس کی کوئی قبر نہ تھی، جہاں کبھی کوئی دیا نہیں جلے گا، جہاں کبھی کوئی پھول نہیں ڈالے گا۔ لیکن رضیہ بانو کبھی نہیں مر سکتی۔ اس نے اپنی لاکھوں بہنوں، بھائیوں اور بیٹیوں کے خون سے اس باجبروت قلعے کی بنیادیں استوار کی ہیں جس کی چوٹی پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ زندہ باد رضیہ بانو، زندہ باد۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔